بغیر وضو کے آیت الکرسی آیت کریمہ چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجہ بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتے ہیں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ تعالی شفا مل جائے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
आयतल कुर्सी में 50 कलमात हैं और हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के तरफ से 50 बरक़ात हैं। आयतल कुर्सी का मकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म करता है, जिसमें कम अज़ कम गुर्बत और आखिर में अज़ाब कब्र से निजात हासिल होती है। अबी इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेहतर इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबू अल मंजर, इल्म मुबारक हो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। इस आयत की ज़ुबान और होंठ होगी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते हैं, तो मैं भी बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तूने नमाज़ पढ़ी है? तो मैंने नहीं में जवाब दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठकर नमाज़ पढ़ो। मैंने उठकर नमाज अदा की और फिर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहता है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जी हाँ। मैंने कहा नमाज का कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज़्यादा कर ले, जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं, मैंने कहा रोज़े के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे हैं, फ़र्ज़ है, उसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका? तो वो कहने लगे, उसका अजर डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा, कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन था? कहने लगे, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल, क्या वो नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकर्रम थे, अल्लाह ताला के साथ बातचीत की थी। मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 310 से कुछ ज़्यादा। एक जम गज़ीर था और एक मरतबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया उसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया, आयतल कुर्सी। कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो वो एक जिन से मिला और वो उसे कहने लगा, क्या तू मेरे साथ कश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, जब तू ये आयत घर में दाखिल होकर पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन दोनों ने मुकाबला किया तो इंसान ने उसे पिछाड़ दिया। वो इंसान उसे कहने लगा, मैं तुझे बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला देख रहा हूँ, तेरे बाजू कुत्ते की तरह हैं। क्या सब जिन इसी तरह हैं या कि उनमें से तू ही ऐसा है? तो उसने कहा कि उनमें से मैं ही कमज़ोर और दुबला पतला हूँ। उसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने दोबारा उसे पिछाड़ दिया। तो वो जिन कहने लगा, तो आयतल कुर्सी पढ़ा कर, इसलिए कि जो भी घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है उस घर से शैतान निकल भागता है और निकलते वक्त उसकी आवाज़ गधे के गोश मारने की सी आवाज़ की तरह होती है। नाजरीन, आयतल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है, जो अज़मत वाली आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला की तौहीद और बास अहम सिफ़ात का ज़िक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का भी ज़िक्र आया है, जिसकी वजह से इस आयत को आयतल कुर्सी कहा जाता है। नाजरीन, चलिए एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया जाए ताकि जिन हजरात को आयतल कुर्सी का इल्म ना हो वो भी कुरान करीम की इस अहम आयत को याद कर ले और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना ले।
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिन्नतुन वला नौम लहु मा फिल समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैन ऐदिहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुल समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम्मा व हुवल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन, अब आइए अपने असल मौजू की जानिब चलते हैं कि क्या बगैर वज़ू के आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वज़ू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था और गली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रोनमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया है, तो उसके लिए वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि कुरान करीम की तलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बग़ैर वज़ू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम काज करते हुए कुरान पाक की तलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान पाक से देख कर तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरत ज़ुबानी याद है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर उनको ज़बानी पढ़ने के लिए या तलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, ख्वाह घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए, सफ़र पर जाने के लिए, अज़ान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बग़ैर वज़ू के जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब उन दुआओं को बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बग़ैर वज़ू पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ज़ुबानी पढ़ना हो। अब ये जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाजरीन, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफ़ों को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ़ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों कुल ज़रूर पढ़ें। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और ज़िक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन चारों कुल या दुरूद पाक या कोई दीगर वज़ाइफ़ पढ़ना चाहती है, तो बग़ैर किसी तरद्दुद और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जान सुनिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान की तलावत नहीं कर सकती, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत या सूरतें जिनको वो रोज़ ज़िक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं, उनको ज़बानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी के कुछ इक़साम भी बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में या हालत हैज़ व नफास में, या ख़वातीन के कपड़े ख़राब हैं, बच्चों के पेशाब या पखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हज़रात जो काम करने के लिए गए हैं, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग जाता है, तो ये तमाम हालत नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में आप ज़ुबान से ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएं रोज़मर्रा के मामलात में पढ़ी जाती हैं, उनका बेफ़िक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं। हरगिज़ कोई कबाहत नहीं है। आपको लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और बग़ैर वज़ू के भी
कर सकते हैं तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है। तो नाज़रीन, फ़र्क ये है कि बग़ैर वज़ू आप कुरान को छुए बग़ैर कुरान की सूरतों की तलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगर आप ज़िक्र अस्कार और वज़ाइफ़ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तलावत की नीयत से कुरान की सूरत में ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चलें कि अगरचा बग़ैर वज़ू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तलावत कुरान भी कर सकते हैं, आपको उनका अजर सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावज़ू होकर करेंगे तो इसकी फ़जीलत और उसका दर्जा बग़ैर वज़ू वाले अमाल से बुलंद बरतर होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तलावत करनी हो तो बावज़ू होकर ही करें, क्योंकि बावज़ू रहना बज़ाते खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाए उसका अजर सवाब भी बढ़ जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ने, नमाज़ पढ़ने और ज़िक्र अस्कार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।